So what we have learned, or what we have studied what is modulation. Okay, modulation is a process. Basically, we use high frequency carrier signal and we superimpose our information signal onto that carrier signal. We have also discussed what is need of modulation. So to increase range of communication, we require modulation. To improve quality of reception, uh, we also discuss how we reduce height of antenna with the help of modulation. Okay. Uh, we have already taken one example. In that case, without modulation, without modulation, we require suppose 7.5 kilometer antenna. So this equation is important. How we calculate antenna of height? Minimum antenna of height we require, that is lambda by 4. So lambda is c by f. Okay. So to calculate height of antenna, we require this formula, c divided by 4 by f. C is velocity of light, which is always constant, 3 into 10 raised to 8. Depending on that frequency, okay, if frequency is less, we require greater antenna height, and if frequency is more, that antenna height will reduce. Okay. So C by 4F is a equation to calculate antenna height. Without modulation, we require 7.5 kilometer antenna height, and with the help of modulation, we require only 75-meter height. If we consider the modulating or a modulated signal is having frequency of 1 megahertz, or carrier signal frequency is 1 megahertz. Okay. So if we increase frequency, then automatically height of antenna is reduced. Okay. So that point we have already discussed, that is how to reduce antenna height, or why modulation is required, or when we use modulation we can reduce antenna height. Multiplexing, this point is also covered in previous lecture, that is we can send multiple signals over single communication channel. No need of any dedicated channel. We can send multiple user data on a single communication channel. We already discussed example of our radio stations. Okay. So next point is classification of modulation. Okay. Classification of modulation. Up to this point, you have clear the concept of what is modulation. Just we will discuss today we will discuss classification of modulation. Classification of modulation technique. Please note down classification of modulation techniques. So basically, we classify modulation as continuous wave modulation, modulation process as instead of PPT, we spent. So this is better. Modulation process.
First one is continuous wave modulation. Continuous wave modulation. मैंने आपको ये पहले भी बताया था व्हाट इज कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, या कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन क्या होता है, याद है आपको? किसी को याद है व्हाट इज कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन? सेकंड कैटेगरी इज, और सेकंड टाइप इज पल्स मॉड्यूलेशन. पल्स मॉड्यूलेशन. In continuous wave modulation, these are the types. AM, FM and PM are the example of continuous wave modulation. Okay. What is AM? What is AM? Amplitude modulation. What is FM? Frequency modulation. Frequency modulation. Very good. So AM. Next one is FM and PM. These are the example of continuous wave modulation. ठीक है. AM, FM and PM. Next one is pulse modulation. We can classify pulse modulation as analog pulse modulation and digital pulse modulation. Analog pulse and next type is digital pulse. Further classification of analog pulse modulation is, हे लिहून घ्या आशिष. PAM, what is first analog pulse modulation technique? That is PAM. PAM, pulse amplitude modulation. Next one is PWM, pulse width modulation. Make note of all these analog pulse modulation types. Write it long form also. Pulse width modulation. Third one is PPM, that is pulse position modulation. In case of digital pulse, we can classify it as a we will write 2-3 examples of digital pulse modulation. First one is suppose PCM. PCM. Okay. Next one is
DM और DPCM, right? Next one is DM. Next one is ADM. DM, ADM. These are the types of digital pulse modulation techniques. ओके, लिहिले हे दीपाली, लिहून झालं का? हो सर हो. व्हेरी गुड. आता इकडे लक्ष द्या, इथे आता लक्ष द्या. कंटिन्युअस वेव्ह मॉड्युलेशन. आता आपण मॉड्युलेशनला क्लासिफिकेशन केलंय, कंटिन्युअस वेव्ह मॉड्युलेशन अँड पल्स मॉड्युलेशन. ठीक आहे. आता आपण फोकस करतोय कशावर? वी आर फोकसिंग ऑन continuous wave modulation, this one, continuous wave modulation. So why this type of modulation is called continuous wave modulation? मी या पहिले पण सांगितलं होतं. कंटिन्युअस वेव्ह मॉड्युलेशन म्हणजे काय? कंटिन्युअस वेव्ह मॉड्युलेशन we use continuous wave as a carrier signal. Okay, we will take new slide. In continuous wave modulation, ठीक है, suppose this is our information signal, this one is our carrier signal which is continuous in nature. असं घेतलं ना कॅरियर सिग्नल, बरोबर आहे? सो इट इज कंटिन्युअस इन नेचर, कंटिन्युअस वेव. ठीक आहे. whatever type of modulation, suppose if it is AM, or FM, any type, carrier signal is in continuous form. That's why we called it as a continuous wave modulation. लिख लो, what is mean by continuous wave modulation? In continuous wave modulation, the carrier is usually sinusoidal. Continuous wave modulation. In CWM, carrier is usually sinusoidal. Next point, its frequency is much higher than the frequency of modulating signal. Carrier signal की frequency कैसी रहेगी? Greater. Its frequency is much higher than the frequency of the modulating signal. लिख लिया? तो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में क्या रहता है? कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में जो है कैरियर सिग्नल जो है कंटिन्यूस नेचर में रहेगा,
That's why its name is continuous wave modulation. And carrier frequency is higher than the modulating signal frequency. यानी ये कैरियर सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? इट इज ऑलवेज ग्रेटर और ऑलवेज हायर देन मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी. बरोबर है ना? दिस वन इज मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मॉड्युलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल. लिहून झालंय का तुमचं? सर तुमचा आवाजच येत नाही रे मला काही. सर हा सर जायचा फोन होता म्हणे लेक्चर जॉईन होत नाही म्हणे. हा, एक मिनिट. त्याला रिक्वेस्ट पाठव म्हणा. हाँ पाठवली. ओके झालं जॉइन. चलो अभी हम स्पीड अप लेंगे जरा. जैद भी आ गया है. थोड़ा स्पीड में थोड़ा स्लो पढ़ा रहा था क्योंकि ज्यादा अगर पढ़ाना हो गया जैद तो आपको समझ में नहीं आता. ठीक है अभी हम थोड़ा स्पीड से लेंगे क्योंकि अभी आप हो सभी लोग प्रेजेंट. क्या डिस्कस किया था हमने? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन यानी हम मॉड्यूलेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं. ठीक है तो ये रहा क्लासिफिकेशन. कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के टाइप से एएम एफएम और पीएम दो कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करते हैं. एक तो कंटिन्यूस वेव और एक तो है पल्स वेव. पल्स वेव में अगेन दो टाइप है, एनालॉग पल्स और डिजिटल पल्स. ये हम बाद में देखेंगे. तो ये हम देख रहे थे कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन. Why we call it as a continuous wave modulation? Because carrier signal is always continuous in nature. तो जो है continuous wave modulation में जो है हमने कैरियर देखा वो continuous था नेचर में, continuously vary हो रहा है with respect to time. That's why हम इसे बोलेंगे continuous wave modulation. ठीक है अभी किसी को डाउट है क्या continuous wave modulation? तो ये हम एग्जांपल देखते हैं. AM, FM और PM ये किसके एग्जांपल हुए? कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के. ठीक है मैं ये अगर देखूं ये एग्जांपल किसका हुआ? कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन का. एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ठीक है चलो इसको हम बाद में बनाएंगे. ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम है? जैद इसमें प्रॉब्लम है क्या? इसको कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन क्यों बोला? क्योंकि इसका जो कैरियर सिग्नल है वो है कंटिन्यूस नेचर में और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके ठीक है अभी मैं ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है मैं आपको ये बता देता हूँ. पल्स मॉड्यूलेशन ये तो आपको समझ में आया. एएम एफएम और पीएम क्या है? अभी जो पीईसी जो सब्जेक्ट है ना उसमें हमें फोकस करना है मोस्टली इन चीजों पे. एएम एफएम और पीएम पे ये कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अभी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं. इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन है. एनालॉग कम्युनिकेशन यानी ये जो आपको ये दिखा ना ये सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो एनालॉग में ही होगा. कैरियर सिग्नल एनालॉग ही है और एनालॉग फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है. देखो ये कंटिन्यूसली वेरी होना है ना. अगर मैं ये एएम का भी एग्जांपल लूं तो जो इंफॉर्मेशन है कंटिन्यूसली वेरी हो रही है तो इसको मैं एनालॉग कम्युनिकेशन बोलता हूँ. ठीक है क्योंकि ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है स्टिल इट इज इन एनालॉग फॉर्म. दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन. ठीक है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन या एनालॉग मॉड्यूलेशन. ठीक है यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन इन ब्रैकेट एनालॉग मॉड्यूलेशन. तो ये एनालॉग मॉड्यूलेशन के एग्जांपल हुए. ठीक है अभी हम ये रफली थोड़ा पल्स मॉड्यूलेशन क्या है वो देख लेते हैं. पल्स मॉड्यूलेशन कैसा है? उसको सेव कर लेता हूं. एएम
क्योंकि बाद में अगर लगा अपने को तो ड्रॉ करने में और टाइम जाता है। AM, ठीक है। पल्स मॉड्यूलेशन, देखो पल्स मॉड्यूलेशन में जो है, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन सिग्नल लूं तो इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में, बराबर है। कैरियर जो पल्सेस रहेगी, कैरियर जो है पल्सेस रहेगी, पल्सेस यानी ये ऐसा, या आप ड्रॉ कर लो, जो सेम हाइट और सेम विड्थ की है, देखो। सो इन केस ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन, carrier signal carrier signal is in the form of pulses. Please try to draw it in equal height and equal width. हाइट जो है इनकी सेम है। ये जो कैरियर सिग्नल मैंने ड्रॉ किया, दिस इज सी कैरियर सिग्नल, दिस इज M मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस वन इज कैरियर, और इंफॉर्मेशन सिग्नल, इंफॉर्मेशन I, ठीक है। ये आपने लिख लिया। तो ये है इंफॉर्मेशन सिग्नल। कैरियर कैसी है? पल्सेस के फॉर्म में। देखो क्लासिफिकेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, बाद में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे, जब है कैरियर पल्सेस के फॉर्म में तो उसे क्या बोलेंगे? पल्स मॉड्यूलेशन। समझ लो। देखो कैरियर है पल्सेस के फॉर्म में, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में कैसी थी कैरियर? कंटिन्यूस फॉर्म में थे, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन। इन केस ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन, कैरियर इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। ओके, तो ये हम यहां तक आ गए पल्स मॉड्यूलेशन। अभी ये एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन कैसा है, देखो मैं एक एग्जांपल बोलता हूं आपको। PAM, PWM और PPM ये उसके टाइप है, बराबर है। अगर ये पल्सेस का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, देखो यहां तक कोई चेंज है, इंफॉर्मेशन सिग्नल में स्टडी है, तो जैसी पहली कैरियर पल्सेस थी एज इट इज वो जनरेट होगी, बराबर है। बट आफ्टर दैट पॉइंट, यहां से ये देखो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो ये जो है पल्सेस का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, नॉट विड्थ, एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तुम जो बाद में डिक्रीज हो रहा है, बाद में और इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है पल्स की जो है हाइट, या बोलेंगे एम्पलीट्यूड, पल्स का एम्पलीट्यूड जो है वेरी हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, मैं जो है ना ये कैरियर पल्सेस थोड़ी नजदीक नजदीक निकालता हूं, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक आहे। PAM मध्ये काय होतंय किंवा पल्स मॉड्युलेशन मध्ये काय होतंय, कॅरियर जे पल्सेस आहेत, बरोबर आहे, म्हणून त्याला पल्स मॉड्युलेशन म्हणलं, बरोबर आहे। ठीक है, यहां तक देखो। अभी जो पल्सेस है वो कांस्टेंट रहेगी, क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में जो है कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल नहीं है, यहां तक कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल है नहीं है। उसके बाद जो है पल्सेस का एम्पलीट्यूड थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बाद में अभी थोड़ा कम हो रहा है, अभी नेगेटिव है, नेगेटिव पल्स है, कंटिन्यूअस वेव, तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, बराबर है। बाद में और ये पॉजिटिव पल्स आई समझो, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ओके, तो इससे बोलेंगे, ये देखो ये ऐसा दिखेगा, समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या हुआ? PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अगर हमने ये देखा तो ये रिजल्टेंट जो सिग्नल है स्टिल इट इज इन एनालॉग फॉर्म। ये देखो ये दिख रहा है कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है, ठीक है।
तो पल्स मॉड्यूलेशन तो है, कैरियर तो हमने पल्सेस ली है, बराबर है, पल्सेस है, लेकिन जो रिजल्टेंट आउटपुट या मॉड्यूलेशन हम कर रहे हैं तो वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्टिल इज इन एनालॉग फॉर्म में है, ये देखो, बराबर है। सो दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, पीएएम, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ में भी वैसे ही होता है। पल्स विड्थ में अगर हमने कंसीडर किया पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो पल्स विड्थ में भी क्या हो रहा है, जो है ये जो पल्सेस की विड्थ जो है वो वेरी हो रही है, अभी तक कांस्टेंट रहेगी अप टू दिस पॉइंट, there is no change in pulse width. Why? Because there is no change in modulating signal. Modulating signal में या information signal में कोई भी changes नहीं है, that's why pulse width will not vary. But as modulating signal increases, pulse width also increases. width यानी जाड़ी, ये जो ना ये width, ये बात कर रहा हूं मैं, ये जो है इंक्रीज हो गई, ठीक है। पल्स विड्थ कैसे होगी, इंक्रीज होगी, जैसे निगेटिव सिग्नल आ गया पल्स विड्थ कम कम होते जाएगी, ठीक है, बराबर है, आपको समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्म में भी जो है सिग्नल जो है आपको रिजल्टेंट, अगर मैं ये पी डब्ल्यू एम भी बोलूं तो रिजल्टेंट सिग्नल जो है आपको एनालॉग फॉर्म में ही रहता है या एनालॉग फॉर्म में ही मिलता है, और वी ट्रांसमिट दैट PWM signal, that signal is in analog form, sorry, PWM, pulse width modulation, PWM pulse width modulation, ठीक है। तो ये जो है ना विड्थ वेरी हो रही है, जो पल्सेस की जो है विड्थ वेरी हो रही है, और ये सिग्नल जो है एनालॉग फॉर्म में ही है। PWM से ही PPM बनता है, हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं अपनी नॉलेज के लिए। PWM से ही PPM बनता है, यहाँ पे जो एंड हो गई तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे बीच में कोई नहीं है पल्स, तो ये PPM बनता है, वैसे यहाँ पे एंड हो रही है तो यहाँ पे ये पल्स बनेगी, पल्स की पोजीशन चेंज होगी, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ये ज्यादा आप डीप में सोचो मत PWM PPM PAM के बारे में, लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए कि आफ्टर दैट मॉड्यूलेशन, if you are using PAM, PWM or PPM, still the signal or modulated signal is in analog form, जैसे मैंने आपको PAM के केस में बताया। देखो अगर ये PAM है तो सिग्नल कैसा है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये जो है सिग्नल एनालॉग फॉर्म में ही है, बराबर है, तो इसको बोलेंगे एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ये जो है ना PAM PWM और PPM, ये रही एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ठीक है। अभी डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन किसे बोलेंगे समझ लो, थोड़ा डिफरेंस समझ लो, ये तो यही रहेगा, पल्स है यानी कैरियर जो है पल्सेस ही रहेगी, बराबर है। डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन में जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी अभी के लिए आपको नहीं है वो, लेकिन समझ लो PCM, एक एग्जांपल लिया मैंने, PCM या DM डेल्टा मॉड्यूलेशन या ADM, ADM, बराबर है। अगर मैं ये PCM के लिए बोलूं तो मुझे आउटपुट है ना 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे फॉर्म में मिलता है।
अब ये कैसे मिलता है ये हमें अभी नहीं देखना, बाद में देखना है, लेकिन एट द आउटपुट ऑफ पीसीएम यू विल गेट दिस डिजिटल सिग्नल, दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये देखो ये डिजिटल आएगा, ये देखो ये 0 1 0 1 0 1, समझो ये इसका आउटपुट है 1, एडीएम का आउटपुट ये है। सो आउटपुट ऑफ पीसीएम, डीएम और एडीएम यू विल गेट इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है? दिस इज डिजिटल सिग्नल, बराबर है? तो ये ट्रांसमिट कर रहे हैं हम 100100, तो अलग, अगर मैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट मॉड्यूलेशन टेक्निक आई एम यूजिंग, so if I am using PCM, DM or ADM, all these are types of digital pulse modulation technique. Why? Because at the output of this digital modulation technique we get a digital output, that means we are transmitting digital signal. एनालॉग कम्युनिकेशन में कैसा था, एएम में कैसा था, ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे थे हम, बराबर है ना? तो ये कौन सा सिग्नल हुआ, ये एनालॉग सिग्नल है ना, बराबर है? पल्स मॉड्यूलेशन भी देखा हमने। पल्स मॉड्यूलेशन में समझो ये हम ये बोला था कि इसकी हाइट जो है वो, पल्स की जो हाइट है वो कम ज्यादा हो रही है, लेकिन वो किसका एग्जांपल था? एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन का एग्जांपल था, बराबर है? ये जो पल्स कम ज्यादा हो रही है, दिस इज एनालॉग सिग्नल, दिस इज ऑल्सो एनालॉग सिग्नल। बट इन केस ऑफ डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन मींस पीसीएम, डीएम और एडीएम के बारे में अगर हमने देखा, तो ये 1001 1001 ऐसे फॉर्म में सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट मींस इट इज इन डिजिटल फॉर्म। सो दैट्स व्हाई PCM, DM and ADM are example of digital pulse modulation, ठीक है? ओके, आप में से किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। जैद, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा है? नहीं सर। अभी मैं पूछता हूँ, एक ड्रॉ करता हूँ और आपको बोलना है कि ये कौन सा टाइप है, खाली उतना ही बोलना है, बराबर है? सपोज दिस इज इंफॉर्मेशन सिग्नल, and this one is carrier signal. Zaid, please unmute yourself and answer which type of modulation is this? कौन से टाइप का मॉड्यूलेशन है ये? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब पल्स एम्पलीट्यूड कहां से हुआ? आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट which type of modulation, which type of modulation this is? This is pulse modulation. Why? This is pulse because carrier signal are pulses, carrier signal is in form of pulses. अगर मैंने ये ड्रॉ किया होता, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही ड्रॉ नहीं किया ना मैंने अभी तक, if amplitude of pulses are varied according to modulating signal, ये कौन सा है आशीष? मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन सा है? दीपाली, Pulse amplitude modulation. व्हेरी गुड, पल्स एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, PAM. कशाचं टाईप आहे ते? पल्स मॉड्युलेशनचं टाईप आहे, पण पल्स मॉड्युलेशन मध्ये कुठलं टाईप आहे ते? एनालॉग. का बरं?
का बरं अॅनालॉग सांगा आन्सर. हे अॅनालॉग का बरं आहे? हे बघा ना, हे जे रिझल्टंट सिग्नल आहे ते कसं अॅनालॉग फॉर्म मध्ये, मॉड्युलेटेड सिग्नल हे जे आहे ते. ठीक आहे. आशिष, काय सर? पीसीएम का आउटपुट कैसे आएगा बोलो. पीसीएम इट इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन. आउटपुट कैसे आएगा उसका, पीसीएम का. पीसीएम किसका टाइप है? पल्स मॉड्यूलेशन का है क्या? क्या कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन का है? कंटिन्युअस सर. कंटिन्युअस आहे का? हे काय दिसतंय, कॅरियर सिग्नल पल्सेस आहेत ना. आणि पीसीएमचं आउटपुट कसं येईल? पीसीएम कुठल्या कॅटेगरीत लिहिलं तुम्ही? डिजिटल पल्स. यानी पीसीएम डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन का एग्जांपल है. 1 0 1 1 0 1 ऐसा आउटपुट आएगा. यानी at the output of PCM modulator you will get digital signal. That's why it is example of digital pulse modulation technique. PCM रहो, DM रहो या ADM रहो, लक्ष कुठे आहे आशिष? ADM हे काही पण असलं तरी हे कशाचे एक्झाम्पल आहेत? डिजिटल पल्स मॉड्युलेशनचे. त्याचं आउटपुट या डिजिटल फॉर्म मध्ये येईल. लक्षात येते का? हे कशाचं एक्झाम्पल आहे सांग आशिष. आशीष, जैद बोलो ये किसका एग्जाम्पल है? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर. वेरी गुड. कैसा है वो? कौन से इसमें बोलेंगे हम उसको, कौन सी कैटेगरी है? पल्स एनालॉग है या डिजिटल है? एनालॉग आहे सर. एनालॉग पल्स है, एनालॉग. क्योंकि एनालॉग आउटपुट आ रहा है. बराबर है. तो ये हुआ एग्जाम्पल पल्स एनालॉग का. ठीक है. तो इस तरीके से हम जो है मॉड्यूलेशन को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. तो हमें बेसिकली जो है फोकस किस पे करना है. अभी जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये जो सब्जेक्ट है, इट इज लिमिटेड अप टू दिस वन, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन. ठीक है. तो आपको ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए पीएएम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम के बारे में. बट इट इट मेनली फोकस ऑन FM, AM, FM and PM, that is continuous wave modulation. It focuses on continuous wave modulation. किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन पे. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन, in case of continuous wave modulation, depending on which parameter is changed, the continuous wave modulations are classified as AM, FM and PM. ठीक है. तो फर्स्ट लिख लो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको क्या लिखना है? पहला एग्जांपल जो है AM, ये देखेंगे हम. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. डेफिनेशन क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरिड. लिख लो. in proportion with instantaneous amplitude
of baseband means information signal. Baseband signal in bracket information signal. ठीक है, एंड कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी और फेज वेरी होगा क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है लिखना हुआ क्या ये एम्पलीट्यूड जो है कैरियर सिग्नल का वैरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बेसबैंड सिग्नल मींस इंफॉर्मेशन सिग्नल. इंफॉर्मेशन सिग्नल के हिसाब से जो है एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है. ये आप ड्रॉ कर लो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या डेफिनेशन लिख ली ना आपने, आप इसे ड्रॉ कर लो. चलो ये ड्रॉ कर लो. इसमें खाली कैरियर सिग्नल निकालो, साइनूसॉइडल कैरियर सिग्नल. थोड़ा ठीक से निकालो आप. बना लिया आपने एम? दीपाली झालं का ड्रॉ करून? हो सर. व्हेरी गुड.
हमें अभी इसे थोड़ा नोटेशंस देने हैं। गुड, ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखो अभी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ई एम दिख रहा है ना आपको? ई एम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ड्रॉ स्लीपिंग लाइन फ्रॉम हाईएस्ट एम्पलीट्यूड फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज ए एम, सॉरी ई एम। ही जी उंची झाली ना या 0 पासूनची, ती झाली ई एम, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल या बेस बँड सिग्नल. ठीक आहे. दूसरा कलर लेता हूं. व्हाट इज दिस? ई सी, दिस साइड ई सी, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल ई सी, दिखाई दिया? ई सी, दिस पॉइंट इज अगेन 0. ठीक है, दिस वन इज अगेन 0. ये देखो अभी कहां पे पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं. दिस हाईएस्ट पीक यहां पे. ठीक है, आपको ये साइनोसाइडल वेव यहां तक निकालनी है. ठीक है, तो दैट हाईएस्ट पीक फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट 0, it's EC plus EM, EC plus EM. लिखा? जो सबसे छोटा बना है ये समझो ये है, ये यहां पे है ना, दिस वन, इट इज EC माइनस EM, EC माइनस EM. ये जो ऐसे डॉट 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 जो लिखा है हमने, ये जो डॉट डॉट डॉट, आपको बाहर का ये जो दिख रहा है ये, या ऊपर वाला ये जो डॉट है ना, ये मैंने उसको पिंक में कन्वर्ट किया. देखो, we called this as an envelope, E N V E envelope. ये जो है ये है envelope. ठीक है, ये EC माइनस EM है. EC माइनस EM लिख लिया आपने? चलो, हुआ? हुआ क्या? हो सर. वेरी गुड. Yes, sir.
नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हॅलो, या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवलं आहे. हाँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लिखा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के नीचे ये डायग्राम बना लो, ये जो दूसरी वाली है ये डायग्राम बना लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के नीचे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जल्दी बनाओ। सेकंड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। झालं का? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए डेफिनेशन लिख लो अभी। ड्रॉ करना हुआ क्या आपका? हेलो, हो सर. या व्यक्तीशी बोलत एक दोन आहात मिनिट। त्याने तुमच्या हाँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशनची डेफिनेशन लिहून घ्या। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, frequency of carrier is changed. In frequency modulation, frequency of carrier is changed in proportion with in proportion with in proportion with amplitude of the modulating signal, in proportion with amplitude of the modulating signal। FM कैसे बनेगा देखो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, frequency of carrier is varied in proportional with amplitude of baseband signal, that is information signal, and keeping its यहां पे क्या आएगा? amplitude and phase constant। बराबर हुआ क्या देखो? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब रहेगी बोलो? मॉड्यूलेटेड सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब रहेगी? जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल का कैसा है? एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब ज्यादा है तब फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। यहां पे देखो एम्पलीट्यूड जब ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कैसी है? ज्यादा है। एम्पलीट्यूड कम है तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। बराबर है? तो फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरी हुआ क्या? एम्पलीट्यूड एक जैसा ही है। वेरिएशन किस में है? कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में है। बराबर है? तो इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लिखा आपने? इसमें और एक पॉइंट ऐड कर लो, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। इसका मतलब मुझे बोलो, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन in the form of
फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, इसका मीनिंग आपको बोलना है अभी। एफएम यहाँ पे यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर टीवी साउंड एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। टीवी साउंड एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये सेंटेंस, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, इसका मतलब क्या है बोलो मुझे। लिखना हुआ है आपका, ये देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी हमने यहाँ पे आपको ये क्लियर दिखेगा, ये जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है ये ऐसे के ऐसा ये दिख रहा है, यानी हमने इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्म में कैरी की, इंफॉर्मेशन अभी किस में है, तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन के फॉर्म में है, बराबर है। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी होना है ना, तो इसमें छुपी है इंफॉर्मेशन। ये देखो मैंने यहाँ पे ये डॉट 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 ऐसे बनाया था, ठीक है। अगर ये देखो ये गलत हुआ, जैसे मेरा हुआ था पहले, ये एम्पलीट्यूड ये समझो ऐसे, तो ये इन्वॉल्व बनेगा क्या आपका, ये ऐसा जैसे इंफॉर्मेशन सिग्नल का था, ये ऐसा ये नहीं बनेगा, क्योंकि जो है हमने एएम के केस में इंफॉर्मेशन कैसे वेरी कैरी कर रहे हैं हम, कि कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे हैं ना, तो इंफॉर्मेशन छिपी किस में है, ये इस वेरिएशन में है, कैरियर के वेरिएशन में है, बराबर है, इसमें छुपी है। तो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्म में कैरी कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड वेरिएशन के फॉर्म में, यानी इसमें छिपी है अपनी इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड वेरिएशन के फॉर्म में, और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के फॉर्म में, ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के फॉर्म में है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ये ट्रांसमिट कर रहा हूं मैं, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूं, तो मेरी इंफॉर्मेशन छिपी किस में है, इंफॉर्मेशन जो छिपी है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा हूं मैं, यानी ये मैं भेज रहा हूं, ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये ऊपर का है, लेकिन मैं भेजते समय कैसे भेज रहा हूं, कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा हूं, बराबर है, ठीक है। तो मेरी इंफॉर्मेशन छिपी किस में है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के फॉर्म में। आपको और क्लियर समझ में के लिए ये बताता हूं मैं, देखो अगर मैं ये एफएम की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी इस पैच में देखो आपको फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ज्यादा दिखेगा, यानी ये जो है समझो ये नेगेटिव साइकिल होगी। हम रिकंस्ट्रक्ट करते वक्त कैसे करेंगे, डिमोडुलेटर स्टेज में, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है यानी इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा 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 है, बाद में और कम है, तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के फॉर्म में मेरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, मैं इससे बाद में और इसको बनाता हूं रिसीवर की साइड। ओके समझ में आया, यानी एफएम में मैंने फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन कन्वे की, एएम में जो है एम्पलीट्यूड वेरिएशन के फॉर्म में, कैरियर का एम्पलीट्यूड में छुपी थी इंफॉर्मेशन मेरी, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में कैरियर की फ्रीक्वेंसी जैसे वेरी हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी में छुपी है मेरी इंफॉर्मेशन, यानी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के फॉर्म में मैंने भेजी है इंफॉर्मेशन, तो ये रहा एफएम। समझ में आया क्या आपको।
नेक्स्ट लिखो पीएम। पीएम, पीएम का मतलब क्या होता है? Phase फेज modulation. मॉड्यूलेशन। हाँ, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या लिखोगे? फेज ऑफ कैरियर सिग्नल is varied in proportion with instantaneous amplitude of baseband signal, that is information signal, keeping amplitude and frequency constant. Keeping amplitude and frequency constant. ठीक है, तो फेज मॉड्यूलेशन में इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में होंगी? फेज के वेरिएशन के फॉर्म में, बराबर है। लिख ली फेज मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन। एक नोट लिख लो, नोट। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन प्रैक्टिस, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कौन सा सिग्नल? बेस बैंड सिग्नल में और may not be purely sinusoidal. Most of the times it will have a complex shape. चलो मैं आपको आज इसका मतलब बताता हूं और आज के दिन यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ये समझ लो ये क्या है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन प्रैक्टिस में और मे नॉट बी प्योरली साइनुसाइडल, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसे हमने इस ये दोनों भी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये साइनुसाइडल सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये एग्जैक्टली ऐसा साइनुसाइडल ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल हैव कॉम्प्लेक्स शेप, यानी ये जैसे हम ये ऐसे सिंपल बनाते हैं हर बार, ये हम ऐसे बनाते हैं ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये ऐसा सिंपल कंप्लीट साइनुसाइडल ही होगा हर बार, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है ये इरेगुलर शेप, ये कैसा भी हो सकता है इसका शेप, बराबर है, ये कॉम्प्लेक्स शेप में रहता है। ठीक है, ये इसका जैसे हमने ऐसे ये पिक्चोरियल व्यू ये ऐसा बनाया था, ये ऐसा ही हर बार रहेगा, ये साइनुसाइडल ये कंप्लीट या ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये ऐसा इरेगुलर शेप कौन सा भी हो सकता है। कंसेप्ट वही है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है एम्पलीट्यूड वेरी होता है कैरियर सिग्नल का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, फेज में फेज वेरी होता है, और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहते हैं। एक ही चीज वेरी होती है कैरियर सिग्नल की, और ये बात समझ लो कि जो हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, यानी हम इंफॉर्मेशन जो है एम्पलीट्यूड वेरिएशन के फॉर्म में भेज रहे, कैरियर सुपर इम्पोज कर रहे। इसका मतलब क्या? कैरियर, हम कैरियर सिग्नल ही भेज रहे, 1 मेगाहर्ट्ज अगर कैरियर है तो 1 मेगाहर्ट्ज ही कैरियर भेज रहे, लेकिन कैरियर का जो है एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे। जब वो रिसीवर साइड में पहुंचेगा
तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी, यानी बाद में बनाई जाएगी, क्योंकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, जो थर्ड आप ड्रॉ करते हो वो ट्रांसमिट हो रहा है, और रिसीवर क्या करेगा, उसको देख के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इंफॉर्मेशन क्या थी वो समझेगा। तो आपने एम्पलीट्यूड वेरिएशन में एम्पलीट्यूड कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी किया था, यानी एम्पलीट्यूड में छिपी है आपकी इंफॉर्मेशन। समझ में आया? ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थी कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन की, एएम एफएम और पीएम की डेफिनेशंस। इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम है क्या? और शिट, मैंने रिकॉर्डिंग शायद स्टार्ट ही नहीं किया था। हो चालू था। ह्याच्यात काही प्रॉब्लेम आहे का कोणाला? नाही सर. नुसतं हो हो करू नका, सांगा काही नाही सर. प्रॉब्लेम असेल तर. नाही सर. हम्म? चालेल, ठीक आहे, चला मला नेक्स्ट अजून लेक्चर घ्यायचं थर्ड इयरचं. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर उद्या आपण डिस्कस करू परत. ओके, चलो गुड डे. मी एंड करतो मीटिंग.